जॉन मिल्टन को किया, हमने कैरोलाइन राइटर्स भी साथ में बीच में करे हैं. तो in the same sequence I want to take John Bunyan because he is also like John Milton is a religious writer, Puritan writer था, religious writer था. हमें इसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑब्वियसली हमारे सिलेबस है उसमें जॉन बनियन के जो वर्क है पिलग्रिम प्रोग्रेस उसके ऊपर कई जगह क्वेश्चंस देखे गए हैं, आते हैं और आएंगे, आगे भी आएंगे. इट्स अ वेरी मेजर वर्क. अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें इस पूरी प्यूरिटन एज को हम एक रिलीजियस एज मानते हैं क्योंकि जैसे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन इस तरीके के वर्क लिखे हैं, जॉन बनियन ने भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है दैट इज पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. Pilgrim's Progress is about a person, a Christian person's journey from the earth towards the heaven, the gates of heaven. हमें वो समझना है, उसके लिए हमें पहले इसकी जर्नी को समझना पड़ेगा. बेसिकली जॉन बनियन कौन था? जॉन बनियन was also a soldier. He participated in the English Civil War and he was a dedicated English person, a Christian person who was dedicated to his society, to his city, to his nation, country, and who was ready to sacrifice his life for the sake of nation. He was a patriotic person. After marriage, he converted himself into a non-conformist, that is Puritan. He became a Puritan, a non-conformist, and he started preaching, writing sermons. अगर हम इनके overall contribution की बात करते हैं तो he has written approximately 60 writings we can find which belongs to him, but all that 60 writings are sermons. वो सारे के सारे sermons है. sermons को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवचन. तो ये इसने यहाँ पे लिखे, इसने लोगों को सिखाने की, रिलीजन को सिखाने की, समझाने की काफी कोशिश करी. उसने उसी के बारे में काफी सारी बातें भी करी हैं. तो यहाँ पे जॉन बनियन को अगर हम देखते हैं तो आफ्टर मैरिज he become a preacher, he become a priest, and he started giving sermons, he started writing hymns, and in the similar kind of activities he was involved. Now अगर हम इसके आगे इनकी जर्नी की बात करते हैं तो just because he was a non-conformist and was giving sermons, when restoration period come, when the restoration of monarchy, that is Charles II came on throne, तब क्या हुआ था? अगेन द सिविल वॉर वाज देयर इन द कंट्री एंड जो चार्ल्स टू थे उन्होंने इन सभी की अथॉरिटी को, इन सबकी अथॉरिटी को खत्म कर दिया था. ऑल द प्यूरिटन्स वर सेंट टू जेल. तो ही वाज आल्सो सेंट टू जेल. ही स्पेंट 12 years in jail. He spent 12 years in jail and he has not wasted it. He basically had read the complete Bible during this period. He read many other books during this period and he came up with his own autobiography which was very important, and he wrote his autobiography in prison. The name of his autobiography is Grace Abounding to the Chief of Sinner. ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश करवाई गई थी because when he came back out of the jail and his many of the work get published. तो 88 में इनके डेथ के टाइम पे जब इनकी ऑटोबायोग्राफी को डिस्कवर किया गया वो तभी पब्लिश कराई गई, उससे पहले उसे पब्लिकेशन नहीं करवाया गया था. So it was published posthumously. Okay, so this was the first work he completed. He wrote this around 1667, 68, but उसके बाद भी ये जेल में ही थी और it published after 88, after 20 years of its writing. Then इनके जो दूसरे works हैं which are very important, इसमें इनके main works में आते हैं Pilgrim's Progress. This is written in two parts. First part 1678. First part is written in 1678. इसमें जो character है, the name of the character is Christian. और यहाँ पे इसकी journey दिखाई है from earth to the gate of heaven. From earth to the gates of heaven.
ये पूरी ट्रैवलिंग करता है और उस पूरी ट्रैवलिंग के दौरान ये किस किस लोगों से मिलता है, किन किन कैरेक्टर से मिलता है, कौन इन्हें परेशान करता है, कौन इनकी हेल्प करता है, वो सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं. ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस वर्क are allegorical and are allegorical. Allegorical means the character who are taken from Bible or are abstract noun which have been given the shape of human. So like hope, will, despondent, mirth, sin, such kind of characters are here. Who are some are troubling journey, some are supporting him in his journey. तो काफी सारे कैरेक्टर्स इसको सपोर्ट करके आगे लेके जा रहे हैं, काफी सारे कैरेक्टर्स इसको रोक रहे हैं, जर्नी लेने से वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं. तो मुश्किलें भी आ रही हैं, हेल्प भी आ रही है, दोनों चीजें आ रही हैं. और उन सारे कैरेक्टर्स का नाम बिब्लिकल है, इसीलिए उनको एलेगोरिकल कैरेक्टर्स बोला गया है. सेकंड जो बुक है इसी का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का जो सेकंड पार्ट है, दैट गॉट पब्लिश्ड इन 1684 एंड इसमें जो कैरेक्टर है दैट इज क्रिश्चियाना. क्रिश्चियाना इज वाइफ ऑफ क्रिश्चियन एंड शी स्टार्टेड जर्नी विद द 4 sons of her. वो अकेले नहीं जाती, वो 4 बेटे और उसकी एक मेड के साथ जर्नी स्टार्ट करती है. बीच बीच में एक एक करके इसके 3 बेटे जर्नी में मैरिज कर लेते हैं. दे वेंट बैक होम. दे लाइक कि वी कैन नॉट परस्यू द जर्नी नाउ, वी आर टायर्ड और व्हाटएवर, दे वर अनेबल टू फेस द प्रॉब्लम, सो दे रिटर्न. बट इनका सबसे बड़ा बेटा इनके साथ एंड तक जाता है एंड दे रीच टू द सेक्रेड लेक. लेकिन Christian crossed that lake and reached to the gate of heaven, but because like the myth, anti-feminist myth, the Christiana was not allowed to enter into the sacred या holy lake because she is a female, she cannot enter the lake. So ultimately, because she reached there with the maiden, with the helper, with the maid and her elder son Edgar नाम है शायद उसमें, वो उनके साथ जब वहां पे होली लेक पे पहुंच ही जाती हैं, तो वहां पे वो अपनी जगह अपने बेटे को बोलती है कि यू शुड एंटर द होली लेक, क्रॉस इट एंड रीच टू द गेट ऑफ हेवन बिकॉज आई वांट समवन टू मीट योर फादर. आई नो ही इज देयर, ही हैज रीच्ड हियर एंड उन्होंने ही हमें बुलाया था, मैं यहाँ आ गई हूँ, बट द angels are not allowing me to enter into the sacred lake but you can enter. तो एडगर उस लेक में एंटर करता है, उसे क्रॉस करता है एंड अल्टीमेटली ये एंड कहाँ पे होती है, when his son was when his son has crossed the lake and he was going toward the gates of heaven. Gates of heaven are open and when he was entering he was bidding the bye to the mother and the maiden. उनको बाय बोलता हुआ जाता है एंड क्रिश्चियाना और उसकी मेडन वापस अर्थ की तरफ, वापस अपने होम की तरफ टर्न हो जाते बिकॉज दे हैव नो अदर चॉइसेस. कि अब हम यहाँ तक पहुंचने के बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें वापस जाना पड़ेगा. वो वापस चले जाते हैं एट द गेट ऑफ हेवंस में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज इन द होप ऑफ मीटिंग हिज फादर, क्योंकि उसको अपने फादर से मिलने की होप है. तो वो अंदर चला जाता है अपने मदर के ऑर्डर्स को लेके और उसकी मदर वापस आ जाती है. दिस इज पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है and from any exam you are taking, I suggest you should go through this work. बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये. राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम मिल्टन के लिए बोलते हैं, सिमिलरली ये भी काफी इंपॉर्टेंट राइटर है. तो पिलग्रिम प्रोग्रेस आपको पढ़ना है. ये हुआ इनका फर्स्ट वर्क एंड पिलग्रिम प्रोग्रेस इज द सेकंड वर्क जो आपको इनका पढ़ना है. आफ्टर पिलग्रिम प्रोग्रेस इनका कौन सा वर्क है जो कि इंपॉर्टेंट है? आफ्टर पिलग्रिम प्रोग्रेस देयर इज अनदर वर्क व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज अकाउंट, दैट इज लाइफ एंड डेथ ऑफ द बैड मैन. लाइफ एंड डेथ ऑफ द बैड मैन 1680. इस वर्क में 2 कैरेक्टर्स को डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करते हुए दिखाया है अबाउट द सन एंड द रिजरेक्शंस, अबाउट द सिंस, द सन एंड द रिजरेक्शन, द सिंस एंड द रिडेम्पशन, दोनों चीजों के बारे में. सन मींस क्राइस्ट, तो वो जो 2 कैरेक्टर हैं वो क्राइस्ट और उनके रिजरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और जो सिंस है, सिंस और उनसे रिडेम्पशन के बारे में भी बात कर रहे हैं. तो ये जो 2 कैरेक्टर हैं, ये दोनों कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ऑथर हैड अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद द रीडर्स, और वो उन रीडर्स को डायरेक्ट सजेस्ट कर रहा है कि यू व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड नॉट डू.
उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी यहाँ पे लाइफ एंड डेथ ऑफ द बैटमैन के अंदर सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बैटमैन इज बीइंग टेकन एज द ऑथर हिमसेल्फ, ठीक है। नाउ द लास्ट वर्क बाय दिस राइटर, फोर्थ वर्क इज द होली वॉर। इसमें जो कैरेक्टर है होली वॉर के अंदर, उसका नाम है मैंसोल, that is soul of man, and he is talking about the holy war, the civil war, English civil war, about the religion, saving of the religion, the corruption of the religion, the corruption of the churches, इसमें ये सारी बात की गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट जॉन बनियन। जॉन बनियन के ये 4 इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके अंदर आपको मेन जो पढ़ना है दैट इज पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ आपको देखने हैं। साथ में इनके बारे में जितना मैंने बताया है उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा डिटेल इसमें आने वाली नहीं है। तो फॉर द नेक्स्ट वीडियो just wait and wish you all the best because your exams are coming very near. So if you have any kind of confusion or if you have any kind of doubts, then you can message us here, you can comment, and do subscribe our channel as soon as possible because we are going to upload much important videos about the world literature and cultural studies very soon. So all the best and stay tuned.